We welcome you to our yet another online service. नमस्ते कलिसिया, हमारे और एक ऑनलाइन सभा में आपका स्वागत है। And we are very glad that you could join us tonight. और हम लोग बहुत खुश हैं कि आप आज रात हमसे जुड़ सके। And Freya, you know right, our culture that we love to dance and jump and shout for Jesus. और जेनी, आप तो ये जानते ही होंगे कि हमारी संस्कृति है कि यीशु के लिए कूदना और नाचना हमें बहुत पसंद है। So church, why don't you just get ready and loosen up and just dance for Jesus? तो कलिसिया, क्यों ना आप लोग तैयार हो जाए, अपने आप को एकदम हल्का कर ले और नाचने के लिए तैयार हो जाए। Wherever you are, let's just stand and praise God. और जहाँ कहीं भी हो आप, क्यों ना आप लोग खड़े हो जाए और यीशु की स्तुति करें। Come on, let's start praising. Come on, clap. Wanna give you what you deserve and hold nothing in reserve. No matter how I'm feeling, I still believe it's what you deserve. Come on. Still be. Oh, oh, still be.
अपना स्तुति का। I absolutely loved dancing and praising God. और मुझे प्रभु की स्तुति करते हुए नाचते हुए बहुत मजा आया। And if you're new to our video, I would like to give you a special welcome. अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो आपका हम एक खास स्वागत करना चाहेंगे। You are our special guest and we would like to say a big hello to you. आप हमारे खास मेहमान हो और हम आपको तहे दिल से नमस्ते कहना चाहेंगे। And on the screen, you will be able to see our Instagram ID and our Facebook ID. We would request you to please drop in your details so that we can get in touch with you. और हमारे स्क्रीन पर आप पाओगे कि हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी आपको दिखाया जा रहा है। अगर आप उस पर जाकर आपकी निजी जानकारी देते हो तो हम आपके साथ संपर्क में रह सकते हैं। Especially your contact number and your name. और आपका नाम और आपका कांटेक्ट नंबर दे सकते हो। Alright Priya, we have something exciting happening this week. और जेनी, इस हफ्ते कुछ दिलचस्प होने वाला है And I'd like to give you a quick announcement about the same. और मैं जल्दी आपको बताना चाहूंगी कि क्या हो रहा है इस हफ्ते। Great, this week is going to be Connect Week. और बहुत अच्छी बात ये है कि इस हफ्ते कनेक्ट वीक है। Connect Group basically is small group of people who meet across Mumbai. Of course, during this lockdown season, we are not able to meet in person. और कनेक्ट ग्रुप एक ऐसे छोटा सा झुंड है जो पूरे मुंबई में फैला हुआ है और एक दूसरे से मिलते हैं। हाँ, ये तो जाहिर बात है कि हम लोग लॉकडाउन में एक दूसरे से शारीरिक तौर से मिल नहीं पाएंगे, But we definitely make sure that we are connecting with our people online on video calls, be it a Zoom or a WhatsApp video call. लेकिन हम लोग ये तय रखते कि अपने लोगों से हम जुड़े रहे, बल्कि वो व्हाट्सएप कॉल हो या फिर जूम कॉल हो। So if you are not a part of a Connect group, please once again make sure that you drop in your details on our Instagram ID and our Facebook ID. We would love to get in touch with you. और एक बार मैं बताना चाहूंगी, अगर आप हमारे कनेक्ट ग्रुप का हिस्सा नहीं हो तो हमारे फेसबुक या इंस्टा आईडी पे जो है आपका निजी जानकारी आप हमें दे सकते हो। Great Priya, we also have on Tuesdays, that is every Tuesday at 8 p.m. we have worship nights happening. और जेनी, सबसे अच्छी बात ये है हर मंगलवार के शाम के 8 बजे हम लोग स्तुति और आराधना का एक ग्रुप चलाते हैं। This happens on Facebook on a private ID and this happens live. और ये हमारे फेसबुक आईडी में प्राइवेट तौर से होता है और ये लाइव होता है। And if you'd like to be a part of it, you can send in the request or send us the details on our Instagram and Facebook ID. अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हो तो आप हमें एक रिक्वेस्ट भेज सकते हो और अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो हमारे फेसबुक या इंस्टा आईडी पे हमारे साथ संपर्क में रहें। It is absolutely amazing and pleasing to actually praise God and worship Him. और बहुत अच्छा लगता है मिलकर प्रभु की स्तुति और आराधना करना। We love doing that and we would love if you also join with us. और हमें बहुत अच्छा लगता है ये करना और हम खुश रहेंगे जब आप हमारे साथ जुड़ोगे। All right, great. Moving towards the time of giving, और बहुत अच्छा, जैसे हम देने के समय की ओर बढ़ते हैं, I would like to share a small scripture from the Bible. और मैं वचन से एक छोटा सा वचन बांटना चाहूंगी बाइबल से। From the book of Corinthians, that is 2 Corinthians chapter 9 verse 7. और दूसरा कुरिन्थियों का किताब 9वां अध्याय 7वां वचन में पढ़ना चाहूंगी। And this is what it says. और वचन ये कहता है, You must each decide in your heart how much to give. और आप में से हर कोई अपने दिल में ये ठान के रखना है कि कितना देना है। And don't give reluctantly or in response to pressure. और आप जब भी देते हो तभी दबाव में आकर या तो कुड़कुड़ा कर मत देना, For God loves a person who gives cheerfully. क्योंकि प्रभु उस इंसान से बहुत प्यार करता है जो दिल से देता है। The word that stood out to me in this particular scripture, church, is heart. और कलिसिया, इस पूरे वचन में एक शब्द है जो मुझे बहुत हटकर दिखता है, वो ये है कि आपका दिल। The first part of the verse, it says you must each decide in your heart how much to give. और वचन का जो पहला हिस्सा है वो कहता है आप सबको अपने दिल में ठानना है कि आपको कितना देना होगा। It doesn't say that you have to think about it. It doesn't say you have to calculate. It doesn't say that you have to sit and discuss with your family. But it says you must each decide in your heart how much to give. और वचन ये नहीं कहता है कि आप सोचिए कितना देना है या फिर आप खुद निर्णय लीजिए या फिर अपने परिवार के साथ मिल बांट कर सोचिए कि कितना देना है। वचन ये कहता है कि आप आपके दिल में ठानिए कितना देना है। The reason why it is particularly talking about heart is because
When we have a desire, it comes from heart. We don't think about desires. और ये दिल के बारे में इतना गौर क्यों कर रहे हैं हम ये वचन में, क्योंकि जब भी कोई इच्छा उत्पन्न होती है तो हमारे दिल से होता है और हम उसे दिमागी तौर से ज्यादा सोचते नहीं है. And when we stop having that desire, what we do is we start thinking, is it good or is it bad? और जब भी हमारी जो इच्छा होती है वो बंद हो जाती है इच्छा, तो हम लोग दिमागी तौर से सोचने लगते हैं क्या ये सही है या फिर ये गलत है. And when we start thinking if it's right or wrong, that means we will start thinking, or we will be under pressure, and then we'll start thinking, oh, how much should I give? Should I give? Is this the right amount? I have to give because God has said. जब भी आप सोचना शुरू करते हो आपके दिमाग में, तो आप ये सोचने लगोगे पहले तो कि ये सही है या गलत है, फिर आप ये भी सोचने लगोगे कि मुझे देना भी है या नहीं देना, या फिर कितना देना होगा. Eventually, that means you are giving in the house of God reluctantly and not cheerfully. इसका मतलब ये होता है आखिर में जब भी आप प्रभु के घर में देते हो तो वो दिल से नहीं बल्कि दबाव में आकर या फिर कुड़कुड़ा कर दे रहे हो. So this is what Paul is saying in this particular scripture, that each one of us should decide, or we should decide in our heart as to how much we have to give. इसीलिए पौलुस इस वचन में हमें ये कह रहे हैं कि हम में से सबको ये दिल में ठान के रखना होगा कि हमें कितना देना है. Because if it's a desire in our heart, that means we will cheerfully give and we will not think about it twice or thrice. क्योंकि अगर ये देने की इच्छा हमारे दिल में उत्पन्न होती है तो हम बहुत खुशहाल दिल से देंगे और हम लोग कोई दबाव में आकर या कुड़कुड़ा कर नहीं देंगे. And church, we all know that God looks at our heart. और कलीसिया हम सब जानते हैं कि प्रभु हमारे दिलों को देखता है. He doesn't want to see the amount that you actually given in His kingdom. और वो ये नहीं देखता है कि आप कितना उसके राज्य में दे रहे हो. He only cares about how much you love, and He just looks at your heart. वो बस यही देखता है कि आप उससे कितना प्यार करते हो और आपके दिल को देखता है. So why don't you all decide how much do you want to sow in the kingdom of God tonight? तो क्यों ना आप लोग ये फैसला करें कि आज रात प्रभु के राज्य में आप कितना बोना चाहोगे. You will be able to see the details on the screen, और आप लोग स्क्रीन पे डिटेल्स देख पाओगे, so that even during this season you can still sow in the kingdom of God. और इस मौसम में भी आप इस जानकारी के द्वारा प्रभु के राज्य में बोल सकते हो. You can still give your offering, you can still give your tithe. और आप लोग इस समय में भी अपना भेंट और दशमांश दे सकते हो. Why don't you just close your eyes and I'll pray for you. क्यों ना आप लोग आपकी आंखों को बंद करें और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी. Father Lord God, we just thank you for speaking to us through this word. पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस वचन के द्वारा हमसे बात किया है. I just pray, Lord God, that you make us, or you change us in such a way that we actually give in your kingdom, not reluctantly but cheerfully. और प्रभु आप हमें इस तरीके से बदलना कि हम आपके राज्य में जब भी बोते हैं वो खुशहाल दिल से बोए प्रभु, ना कि हम कुड़कुड़ाते या दबाव में बोए. Help us so that we don't think too much when it comes to giving in the house of God. और प्रभु हमारी मदद करना, जब बात आपको देने की आए तो हम ज्यादा सोचे नहीं. And I just pray, Father Lord God, through this word, you speak to many people tonight. और प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ इस वचन के द्वारा बहुत से लोगों से बात करना. And I pray every person who's sowing into your kingdom tonight, I just pray for a blessing over them. और प्रभु वो सारे लोग जो आज रात आपके राज्य में बो रहे उन पर हम आशीष बोलते हैं. And you know everyone's heart, God. और आप सबके दिलों को जानते हैं प्रभु. So we just thank you for that. और हम धन्यवाद करते हैं इस चीज के लिए. In Jesus' mighty name we pray. और यीशु के सामर्थी नाम से हम प्रार्थना करते हैं. Amen. आमीन. Why don't you just stand and we will together worship God. क्यों ना आप लोग खड़े हो जाएं और हम लोग साथ में मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे. Lord Jesus, we come to you, Father. Come to you, God. Oh, the love of my Savior. Oh, the love of my King. Pierce for my
Father in heaven, we thank you for this wonderful time of worship. स्वर्गीय पिता, इस अच्छे आराधना के समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। Thank you, Lord, that you pour out your Spirit on us, Lord Jesus. और धन्यवाद प्रभु कि आपने आपके आत्मा को उंडेला है हम पर। I pray right now as we speak, Lord Father, let your word come out to your people, Lord. और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे हम बोलने लगेंगे प्रभु आपका वचन बाहर आए। Let it speak into people's lives and change their hearts, Lord Father. और प्रभु ये लोगों के जीवन में बोलकर उनकी जिंदगियां बदले। Let every word that I say, Lord, let it come from you, Lord Jesus Christ. और प्रभु जो भी शब्द मैं कहता हूँ प्रभु वो सिर्फ आपकी ओर से आए। Let every word come in clarity, Lord Father. और प्रभु हर एक शब्द साफ तरीके से बाहर आए। Let everything that we say bring glory to your name and only you, Lord. और प्रभु जो भी हम कहेंगे सिर्फ आपके नाम को और आपको महिमा दे। I pray this prayer in the mightiest name of Lord Jesus Christ. और सामर्थ्य यीशु के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. आमीन। All right, tonight I'm going to tell you a story. आज रात में आपको एक कहानी सुनाने वाला A हूँ। story I learned in Sunday school when I was a kid, actually. और एक ऐसी कहानी जो मैं संडे स्कूल में सीखता था जब मैं छोटा बच्चा था। This story is about a prophet called Jonah and the whale. और ये कहानी जो है एक वेल की और एक भविष्यद्वक्ता जिनका नाम जोना है उनके बारे में। Now, Jonah was an Israelite who was a great prophet, actually. और योना जो है एक यहूदी था और वो एक अच्छा भविष्यद्वक्ता था। But he refused to accept his calling and he left on a sea voyage. और वो अपना बुलावा स्वीकारना नहीं चाहता था, इसलिए वो एक बड़े सफर के लिए निकल गया। But then you know समुद्र what happened? God raised a mighty storm, actually. पे। और आपको पता है क्या हुआ? प्रभु ने एक बहुत बड़ा तूफान लाया He raised this storm as a sign of his anger towards Jonah. और योना की तरफ अपना गुस्सा बताने के लिए प्रभु ने इस तूफान को लाया। The sailors who were sailing with him then realized that this was all because of Jonah and then they have to throw him overboard. और जो उसके साथ सफर करने वाले थे उन्हें पता चला कि ये योना की वजह से हो रहा है, तो वो उसे जहाज से उठाकर बाहर फेंक दिया। They did it to save the ship. और उन्होंने ये इसलिए किया ताकि वो अपने नाव को बचा सके। Now Jonah was drowning, और योना डूब रहा था, but he was saved because he was swallowed by a whale. लेकिन वो बच गया क्योंकि उसे एक व्हेल मछली ने निगल लिया था। He lived in the whale's stomach for 3 days. और उसके पेट में वो 3 दिन तक रहा। And after 3 days, the whale spat him out on dry land. और 3 दिन के बाद उस व्हेल ने जाकर उसे एक सूखी जमीन पर उल्टी करके निकाल दिया। Now then he was thankful enough and that his life was spared, and then Jonah actually took upon his calling and did what God asked him to do. और वो बहुत खुश हो गया कि उसकी जिंदगी बच गई। उसके बाद जो उसका बुलावा था प्रभु की तरफ से उसने उसे स्वीकारा। And he did what God had actually called him to do, to be a great prophet. और उसने वही किया जो प्रभु उससे करवाना चाहता था, जो कि एक अच्छा भविष्यद्वक्ता बनना था। But tonight I want to answer one question. और आज रात में एक सवाल का जवाब देना I चाहूँगा। want to answer this question on how to accept the call of God over our lives. और मैं ये सवाल का जवाब देने वाला हूँ कि हमारे जीवन पर जो प्रभु का बुलावा है उसे हम कैसे स्वीकारें। And for those who are taking points, I have 3 points for you. और जो भी लोग पॉइंट्स लिख रहे हैं मैं बताना चाहता हूँ कि 3 मुद्दे हैं। So how to accept the call of God over our lives? तो अपने जीवन पर प्रभु का बुलावा कैसे स्वीकारें। First, we need to know that God has a plan for our life. और पहली बात हमें ये पता चलना होगा कि प्रभु ने हमारे जीवन के लिए एक बुलावा रखा है। You know, in Jeremiah 29:11, और यिर्मयाह का 29वां अध्याय में 11वां वचन कहता है। this is what God says. और वचन ये कहता है प्रभु, For I know the plans I have for you, और मैं जानता हूँ वो योजनाएं जो मैं तुम्हारे लिए रखा हूँ। declares the Lord. प्रभु घोषित करता है। Plans to prosper you and not to harm you. और योजनाएं जो तुम्हारे अच्छाई के लिए ना कि तुम्हारे बुराई के लिए। Plans to give you hope and future. और एक ऐसी योजना जो तुम्हें एक अच्छा भविष्य और आशा देगी। This is what the Lord says. He has plans for us. और प्रभु यही कहता है कि वो हमारे लिए एक योजना रखा है। You know, before Jonah was swallowed by the whale, और योना को वो वेल निगलने के पहले the Bible says he already knew that God had called him to be a great prophet. उसके पहले योना जानता था कि प्रभु ने उसे एक अच्छा भविष्यद्वक्ता बनने के लिए बुलाया। Jonah knew that God had put a call over his life. और योना को ये भी पता था कि उसके जीवन पर प्रभु का बुलावा है। You have to know that God has put a call on your life. और आपको ये जानना जरूरी है कि आपके जीवन पर प्रभु का एक बुलावा है। That there is a work that God has called us to do. और एक ऐसा कार्य है जिसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। And you know what? It is laid out for us in the Bible.
और आपको पता है क्या, ये बुलावा जो है हमें बाइबल में बताया गया क्या God- काम है करके। God makes it very clear again and again. He says, love others. He says, care for the poor. He says, live in such a way that you preach gospel. और प्रभु ये बार बार ये बात साफ साफ कहता है कि दूसरों से प्रेम जताए और गरीबों की मदद करे, और कम शब्दों में कहा जाए तो ऐसा जीवन जिए जिसमें उन्हें सुसमाचार दिखे लोगों So को। when we ask ourselves, what is the call of God on our lives? जब भी हम खुद से पूछते हैं कि हमारे जीवन में प्रभु का बुलावा क्या है, These things are a great place to start. और ये सब चीजें एक अच्छी शुरुआत है उस तरफ। Love others and care for the poor. और दूसरों से प्रेम जताए और गरीबों की मदद करे। I want to share something. और आपको पता है मैं आपसे कुछ बांटना चाहता हूँ। I've always knew the call of God on my life. और मुझे हमेशा से ही पता था कि प्रभु का बुलावा क्या है मेरे जीवन में। As a young person, when I was in college, I knew what God had called me to do in that season. और जब भी मैं जवान व्यक्ति जो एक कॉलेज में पढ़ता था, उसी समय से मैं जानता था कि प्रभु ने मुझे क्या करने के लिए बुलाया। And I used to play keyboard and worship God everywhere, all over India. और पूरे भारत देश में जो है मैं कीबोर्ड बजाता था, प्रभु की आराधना स्तुति चलाता था। And once there was this prophet who came from Pune and he prophesied over my life. और एक भविष्यद्वक्ता थे जो पुणे शहर से आए थे और उन्होंने मेरे पे भविष्यवाणी की। And he prophesied that, when you will play keyboard, Winston, there will be times that people will get healed only by playing keyboard. और उन्होंने मुझसे ये कहा कि विंस्टन, जब जब तुम कीबोर्ड बजाओगे, सिर्फ तुम्हारे बजाने की धुन से ही लोगों को चंगाई मिल जाएगी। And believe me, I knew that was the call of God on my life. और मेरा यकीन कीजिए कि मुझे पता था कि वो प्रभु का बुलावा है मेरे जीवन And में। because I knew that, I kept doing that in pursuit, that God is using me to heal people, to heal their hearts, to heal their minds. और क्योंकि मैं ये जान चुका था, इसीलिए मैं प्रभु के बुलावे में चल रहा था। हर जगह पे मैं बजाने लगा और मुझे ये था कि हाँ, प्रभु मेरे द्वारा लोगों को चंगाई देंगे, लोगों का दिमाग ठीक करेंगे, उनके दिलों में बात करेंगे। So much so that once I was doing sound check and there was this this boy who could not hear or say or speak from birth. और इतना कि जब भी मैं एक बार बजा रहा था, साउंड चेक कर रहा था, एक वहाँ पे लड़का आया था जो पैदाइशी बहरा था, वो सुन नहीं पाता था। And when I was doing sound check, he was healed actually. और जब भी मैं साउंड चेक कर ही रहा था तो उसको चंगाई मिला He started speaking and he started hearing. और वो बोलने लगा और वो सुनने लगा। And then I realized, wow, God is actually using me for what He has called me to do. और उसके बाद मुझे यकीन हुआ कि अरे वाह, प्रभु सच में मेरा इस्तेमाल कर रहा है अपना बुलावा के लिए। Knowing that God has a call for our lives first starts by sitting in His presence. और पहले जब भी हम प्रभु के उपस्थिति में बैठते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रभु का बुलावा है हमारे जीवन। Spending time in His Word, spending time in His presence, and spending time in prayer. और हमारे प्रार्थना में, उसके उपस्थिति में और उसके वचन में समय बिताने पर ही होता है। There is power in asking questions to God about the plans He has for our lives. और आपको पता है, जब भी आप प्रभु से सवाल करते हो कि क्या योजना है मेरे जीवन के बारे में, ये बड़ा सामर्थ्य तरीके से बदलने लगता है। And you have to know that He will always give us the right answer in the right time. और आपको ये बात जानना जरूरी है कि सही समय में वो हमेशा सही जवाब You देगा। need to ask God what He has called you to do. और आपको प्रभु से पूछना पड़ेगा कि उसने आपको क्या करने के लिए बुलाया है। And like me, it will be different in different seasons for you. और मेरे तरह अलग अलग मौसम में प्रभु ने अलग अलग बुलावा रखा रहेगा आपके लिए। But you know what? You need to stay still and hear the voice of God and wait on Him. पर आपको पता है क्या, आपको वहाँ पे डटे रहना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा कि प्रभु का बुलावा क्या है आपके जीवन में। So how to accept the call of God over our lives? We need to know that God has a plan for our life. और प्रभु का बुलावा कैसे स्वीकारें अपने जीवन में? पहला मुद्दा ये है कि हमें ये जानना जरूरी है कि हमारे जीवन के लिए प्रभु से एक बुलावा है। Second point, दूसरा मुद्दा, we need to know. हमें ये जानना We होगा, need to know that the storms will come. हमें ये जानना होगा कि तूफानें आएंगी। Now, let's take a look at what's the definition of a storm actually. और हम लोग देखेंगे कि तूफान का असलियत में मतलब क्या है। Storm is a disturbance of the normal condition of the atmosphere. और तूफान का मतलब ये होता है जो सामान्य हालात होते हैं उसमें हलचल होना। Now know that God created the storm because He was angry with Jonah. और ये समझना चाहिए हमें कि प्रभु ने
इसीलिए तूफान भेजा क्योंकि वो योना से बहुत नाराज था। But God also knew that the whale would come and save him. लेकिन प्रभु ये भी जानता था कि वो व्हेल मछली आएगा और वो जोना को बचाएगा। And eventually, through the storm, it was then that Jonah accepted his calling on his life. और इस तूफान के जरिए जोना ने जो है अपने जीवन में जो बुलावा है उसे स्वीकारा। And sometimes God creates disturbance of normal conditions of our atmosphere in our life. कभी कभार प्रभु जो है हमारे जीवन के सामान्य हालातों में हलचल लाता है। He does this to help us reach our potential, to help us reach our calling. और प्रभु ये इसलिए करता है ताकि हम अपने काबिलियत की ओर बढ़े और हमारे बुलावे को समझे। And if you think about it, have you ever met a Christian who doesn't have a storm in his life? अगर आप इस बारे में सोचते हो तो ये सोचिए कि क्या कभी आपने एक ऐसे मसीह को मिला है जिसके जीवन में कोई भी तरीके का तूफान ना आया हो। There's always some or the other storm, but you have to know that you will always learn something from a storm. और हमेशा कोई ना कोई तरीके के तूफान आते ही रहेंगे, लेकिन आपको ये सीखना जरूरी है कि उस तूफान से आप क्या सीखते हो। You know, for Jonah, the storm pointed him in the right direction. It pointed him to the calling that he had on his life. और अगर योना के जीवन में देखोगे तो ये जो तूफान है उसे सही दिशा दिखा गई, उसके बुलावे की तरफ उसे बढ़ा गई। The calling was to be a great prophet. और उसका बुलावा था कि वो एक बड़ा भविष्यद्वक्ता बने। Without the storm, he wouldn't have gone overboard and then eaten by a fish and then being spat on a dry ground and then realizing, okay, this is the call of God on my life. I have to be a great prophet. अगर ये तूफान नहीं होता तो ना ही उसे नाव से बाहर निकाल के फेंकते, ना ही उसे मछली आके खाती, ना उसे वो मछली बाहर जाके उल्टी करती, और ना ही उसे ये पता चलता कि उसका बुलावा है प्रभु की तरफ से। Now, without the storm, probably Jonah would have stayed on the boat and would have stayed on the sea voyage and not, realized that what is his calling. और अगर ये तूफान नहीं आता तो योना शायद उस नाव में ही रह जाता और सफर करते रह जाता समंदर में। And probably we wouldn't have even known who Jonah is. और शायद हम लोग इस बात से वंचित हो जाते कि योना करके कोई था भी या नहीं। And I'd like to share something which happened in my life. और मैं आपसे कुछ ऐसे बांटने वाला हूँ जो मेरे जीवन में हुआ है। Like I said before, I used to go around India and play keyboard, and I knew that God had called me to do this. और जैसे मैंने आपको बताया, मैं पूरा भारत देश में सफर करता था और कीबोर्ड बजाता था क्योंकि मुझे पता था कि प्रभु ने मुझे इस काम के लिए बुलावा दिया। But you know what? There came a time when I got carried away, and I was thinking probably I should go and play in the film industry and earn some money. और एक ऐसा समय आया जहाँ पे मैं अपने बुलावे से थोड़ा हट गया और मुझे लगा कि हाँ, मुझे जो है फिल्म इंडस्ट्री में जाके प्ले करना चाहिए, थोड़ा पैसे भी कमाना चाहिए। And I tried to do that. और मैंने ये करने की भी कोशिश की। Please note, I'm not saying that it's bad to play in the film industry. I'm just saying it didn't work for me because God didn't want me to do that. और ये बात आप गौर कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री में गाने बजाना बुरी बातें नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो मेरा बुलावा नहीं था, इसलिए मेरे लिए वो काम नहीं किया। So I tried to work in a lot of studios, tried to work with famous DJs, but it just did not work out. और मैंने बहुत सारे स्टूडियोज के साथ, बहुत सारे प्रसिद्ध डीजेस के साथ काम किया, लेकिन ये बिल्कुल काम बन ही नहीं रहा था। And it became a storm in my life. I did not have any money, I did not have any job because no one would take me, and I wouldn't even go around India anymore. और ये मेरे जीवन में एक तूफान बनकर आया क्योंकि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, कोई मुझे कहीं पर बुलाता नहीं था और मैं इंडिया में सफर भी नहीं कर पा रहा And था। every door I tried to go and knock and say I want work, there would be a no always. और हर दरवाजे पे जहाँ पर मैं खटखटा के बोलता था कि मुझे एक नौकरी चाहिए, तो वो लोग हमेशा ना कहते थे। Remember, I was good at what I used to do. और ये याद रखिए, मैं जो करता था वो बहुत अच्छा करता था। But still, that was a wrong decision for me to go into the film industry instead of following the call of God on my life. लेकिन मैंने गलत फैसला ये लिया कि मैं प्रभु के बुलावे में चलने के बगैर मैं जाऊंगा और मैं फिल्म इंडस्ट्री में So बजाऊंगा। God created this storm in my life, and there was no job, no money, and I did not know what to do next. और प्रभु ने मेरे जीवन में ये तूफान लाया जहाँ पे मेरे पास कोई नौकरी नहीं था, पैसे नहीं थे, कुछ नहीं था, मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करूं। And then this whale came in my life. और उसके बाद ये वेल मेरे जीवन में आया। This whale was, God said, you don't play anymore. और ये वेल ये था कि प्रभु ने मुझे कहा कि इसके बाद तुम कभी नहीं बजाओगे। And I did not play anymore. और उसके बाद मैंने कभी नहीं बजाया। And for 6 to 8 months, I was not playing keyboard with anyone. और 6 से 8 महीने तक मैं किसी के लिए बजा रहा नहीं था। Until God put me back in the right place and into the right people's hands.
और तब तक जब तक प्रभु ने मुझे सही समय में सही लोगों के हाथ में नहीं सौंपा। And then I came back to the call of God which I had on my life. और उसके बाद मैं प्रभु के बुलावे में वापस आया जो प्रभु ने मेरे जीवन के लिए रखा। And if you read in chapter 2 in the book of Jonah, you will see that Jonah cried out to God from the whale's stomach. अगर आप योना की किताब में दूसरा अधिकार पढ़ते हो तो आप देखोगे कि योना कैसे उस व्हेल के पेट में से पुकार रहा था प्रभु को। And he prayed to God, and only then when he cried out, God made the whale spit him out. और वो प्रभु के पास रो रहा था और प्रार्थना कर रहा था। उसका पुकार सुनने के बाद ही प्रभु ने उसे व्हेल के पेट में से निकाला। And when we experience storms in our lives, the best thing is to do is to ask God, to pray to God for what is in His will. और जब भी हमारे जीवन में कोई भी तरीके की तूफान आ जाती है, आप सबसे उम्दा काम ये एक कर सकते हो, प्रार्थना कीजिए और प्रभु से पूछिए कि आपका बुलावा क्या है मेरे जीवन के लिए। He will definitely help us through that. और वो जरूर हमें मदद करेगा उस And चीज़ He में। will definitely give you an answer why the storm is there in your life. और वो आपको सच में ये जवाब देगा ये बताने के लिए क्यों उसने वो तूफान लाया आपके लिए। Each and every storm we go through our life can lead us to our calling. और जो भी तूफानों से हम कर गुजरते हैं हमारी जिंदगी में, वो शायद वो जो है जरूर हमारे बुलावे की तरफ हमें बढ़ाता है। It can build our faith, it can build our wisdom, ये हमें विश्वास में, हमें ज्ञान में बढ़ाता है। it can also build our character to live for God. और ये हमारा जो है नियति भी बनाता है ताकि हम प्रभु के लिए जी सके। And it will point us to the right place where God wants us to be. और वो हमें सही दिशा में लेके जाएगा जहाँ पे प्रभु हमें लेके जाना चाहता है। So how to accept the call of God over our lives? तो प्रभु का बुलावा कैसे स्वीकारे हमारे जीवन में? Second point was we need to know that the storms will come. और दूसरा मुद्दा ये था कि हमें जानना होगा कि तूफाने आएंगे। Third point, और तीसरा मुद्दा, we need to position ourselves. हमें अपने आप को जो है एक सही दिशा में खड़ा रखना होगा। So how to accept the call of God over our lives? We need to position ourselves. और प्रभु का बुलावा अपने जीवन में कैसे स्वीकारे? अपने आप को स्थिर रखो एक जगह पर। So when Jonah refused to accept his call, he positioned himself on a boat, and as a part of escaping from God, what God had called him to do. और जब योना को पता चला कि प्रभु ने उसके जीवन में क्या बुलावा दिया है, उस बुलावा से बचने के लिए उसने अपने आप को एक नाव पर स्थिर कर लिया। And sometimes it can be the same with us. और कभी-कभार हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। And God tells us what His plans are, but we position ourselves in a different way or different direction. और प्रभु हमें बताता है कि उसका बुलावा क्या है हमारे जीवन के लिए, लेकिन हम क्या कर बैठते हैं? हम लोग एक अलग जगह पर अलग समय में हम लोग खुद को स्थिर रख लेते हैं। We get scared or we think we can't do it. और हम लोग डर जाते हैं और हम लोग को लगता है कि हम लोग ये नहीं कर पाएंगे। And we don't try it. We think I should not do this. Maybe I am not qualified for it. और हम लोग कोशिश भी नहीं करते, हम लोग ये सोच बैठते हैं कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ तो मैं नहीं करूँगा। So we try to run away from it, not positioning ourselves in the right place. तो सही जगह पर अपने आप को रखने के बदले हम उससे दूर भागते हैं। So you know how I told you that I positioned myself in the wrong place in the industry, tried to make money, tried to make career. और आपको याद है जैसे मैं बता रहा था, मैं अपने आप को एक गलत जगह पे रख आया था जो कि फिल्म इंडस्ट्री है, जहाँ पे मैं बजाना चाहता था, पैसे कमाना चाहता था। But that is not where God wanted me to be. लेकिन प्रभु मुझे वहाँ नहीं रखना चाहता था। God's will for my life, God's call for my life was to serve Him, play keyboard and worship Him. और प्रभु का बुलावा मेरे जीवन के लिए ये था कि मैं उसकी सेवकाई करूं, मैं उसके लिए कीबोर्ड बजाऊं और उसकी आराधना करूं। His call for my life was to be a pastor, to minister to people and to do His ministry. और उसका बुलावा ये था कि मैं लोगों को जो है चलाऊं, मैं सेवकाई करूं और एक पासवान बनूं। And when that storm came in my life where I did not play with someone, God put me back into a band. I started worshiping, and then I positioned myself in the right place. और जब भी प्रभु ने मुझे बोला तूफान लाकर कि तुम बजाओगे नहीं, इसके बाद मैं वैसे ही रहा और उसके बाद सही समय में प्रभु ने मुझे एक सही बैंड में रखा और उसके बाद मैं बजाने लगा। And when I did that, God actually brought the right people into my life, and then I met the right people to meet IC Church, IC Mumbai, and now I'm fulfilling my call in my life to be a pastor for this church. और जैसे मैं ये बजा रहा था, प्रभु मेरे संपर्क में सही लोग लाए और सही लोगों के हाथ में मुझे सौंपा, जिससे मैं आईसी चर्च के संपर्क में आया और आईसी मुंबई के संपर्क में आया और मैंने अपने बुलावा को पूरा So किया। you have to position yourself in the right place so that you go to the call of God and you complete the call of God. तो आपको
जो है सही जगह पर अपने आप को स्थिर रखना होगा ताकि आप प्रभु के बुलावे की ओर बढ़े। We need to position ourselves in such a way that it will lead us to the call of God. और हमें अपने आप को ऐसे जगह पे रखना होगा एकदम स्थिर ताकि वो हमें प्रभु की बुलावे की ओर चलाए। I can tell you what are those places. और मैं आपको बता सकता हूँ कि वो जगह क्या है। Those places are church, connect groups, prayer meetings, worship nights. और वो सब जगह जो है कलीसिया है, कनेक्ट ग्रुप है, आपका वर्शिप नाइट्स है या फिर प्रेयर मीटिंग है। It can also be spending time with Jesus, positioning yourself to come closer to God. और वो ये भी हो सकता है कि आप प्रभु के साथ एक अच्छा समय बिता रहे हो यीशु के साथ और अपने आप को सही जगह पर रख रहे हो। The key is accepting your call, what God has on your life. और जरूरी मुद्दा ये है कि प्रभु ने जो भी बुलावा आपके जीवन में रखा है उसे आप स्वीकार करें। And this is how you accept the call of God on your life. और प्रभु का बुलावा आप ऐसे ही स्वीकार करें। We need to know what the plan of God is on our life. हमें ये जानना होगा कि प्रभु का बुलावा क्या है हमारे We need to know that storms will come in our life. और हमें ये जानना होगा कि तूफानें आएंगी हमारे जीवन में। And we need to position ourselves in the right position. और हमें जो है एक सही स्थिर जगह पर खुद को रखना And होगा। that is how you will be able to accept the call of God in your life. और इस तरीके से आप प्रभु के बुलावे को अपने जीवन में स्वीकार सकते हैं। I hope that this message has blessed you. और मुझे यकीन है कि इस वचन से आपको आशीष मिला है। You have to know that in this season, God has a plan for you. और आपको जानना होगा कि इस मौसम में प्रभु ने आपके लिए एक योजना रखा है। And I pray that when storms will come, you will turn towards God and pray to Him. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि जब भी आपके जीवन में कोई तूफान आए, आप मदद के लिए प्रभु की ओर मुड़ोगे। And I pray that you will position yourself in such a way that you will lead yourself to the call of God that is there on your life. और मुझे ये भी यकीन है कि आप अपने आप को इस तरीके से स्थिर एक जगह पर रखोगे कि जहाँ पे प्रभु की बुलावा आती है आप उस दिशा में बढ़ोगे। God bless you. और प्रभु आपको आशीष दे। I think that was an awesome service. और ये बहुत अच्छा सभा था। I think that was a lovely word as well by Pastor Winston. और मेरे हिसाब से बहुत अच्छा वचन दिया पास्टर विंसेंट ने। Church, please make sure that every single Sunday you come online live at 6 p.m. कलिसिया ये तय रखना हर रविवार शाम के 6 बजे आप ऑनलाइन कलिसिया में आओगे हमारे साथ लाइव। And we would love to chat with you. और हमें बहुत अच्छा लगेगा आपके साथ बात करना। And please make sure that you subscribe to the channel और ये तय रखना कि आप हमारे चैनल पे अपना सब्सक्रिप्शन दोगे। and also click on the notification bell icon so that you get notified every time we upload a video. और ये तय रखना कि आप नोटिफिकेशन बटन दबाएं ताकि हर बार हम लोग जब भी वीडियो डालते हैं तो आपको नोटिफिकेशन आए। And you can also follow us on Instagram and Facebook. और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। We love you, church. Please, please, please stay safe. और हम आपसे बहुत प्यार करते हैं कलिसिया। प्लीज प्लीज आप लोग सेफ रहे, सुरक्षित रहे। See you next week on Sunday evening 6 p.m. और अगले रविवार शाम के 6 बजे हम फिर मिलेंगे। Thank you so much. और आपका बहुत धन्यवाद।